So our next topic is enveloping cylinder. The locus of the tangents to a sphere or conicoid which are parallel to a fixed line is a cylinder called the enveloping cylinder. क्या बोल रहे हैं? locus of tangents to a sphere parallel to a fixed line. So अगर आपके पास एक sphere है, say this is any sphere and this is any line. So इस लाइन के पैरेलल जब आप इस स्फीयर की टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करोगे तो बहुत सारी टेंजेंट लाइंस आएंगी एंड वो जो टेंजेंट लाइंस हैं दे विल इवेंचुअली फॉर्म अ सिलेंडर. तो आपका ये जो स्फीयर है ये इस सिलेंडर के अंदर आ जाएगा. दैट मीन्स दैट सिलेंडर इज़ बेसिकली एनवेलपिंग द स्फीयर. सो दैट इज़ वाई दैट इज़ नोन एज द एनवेलपिंग सिलेंडर. So enveloping cylinder is the locus of tangents to a sphere which are parallel to a fixed line. Now equation of enveloping cylinder कैसे निकालते हैं? देखो बहुत easy है. Find the equation of the enveloping cylinder of this sphere whose generators are parallel to the line. So देखो यहीं से अगर मैं देखूँ ये sphere है मेरे पास और ये line है. इस line की डायरेक्शन रेशोज उन्होंने हमें दे दी LMN. हमने ले लिया लेट P x1 y1 z1 be any point on the sphere, then equation of any line passing through P and parallel to this will be given by x minus x1 by L is equal to y minus y1 by M is equal to z minus z1 by N is equal to lambda से. So उससे क्या होगा? आपको एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन मिल जाएगा. तो ये देखो ये ले लिया इन्होंने. द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज दिस, द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन इज दिस. लेट x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन टेंजेंट पैरेलल टू द गिवन लाइन. ओके, हमने टेंजेंट पे लिया x1 y1 पॉइंट, स्फीयर पे नहीं लिया, सॉरी. सो ये याद रखना है आपने. हमने लेना है लेट x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट पैरेलल टू द गिवन line. Then equation of tangent through x1 y1 z1 will be given and parallel to the given line is of the type x minus x1 by L is equal to y minus y1 by M is equal to z minus z1 by N. So that जब आप इसको is equal to R से करोगे, so this is any point on this tangent line. Now in particular this point will lie on the sphere number 1. ये जो point है ये हो सकता है. अगर ये point sphere पे lie करता है तो इसको satisfy करेगा. So if it lies on the sphere then आप इस पॉइंट को स्फीयर की इक्वेशन में पुट कर दोगे. स्फीयर की इक्वेशन में पुट करके आपको क्वाड्रेटिक किनारे की इक्वेशन मिल गई. लेकिन ये जो स्फीयर है, ये जो टेंजेंट है, ये तो स्फीयर को एक ही पॉइंट पे टच करता है क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है. इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही थी, दिस इक्वेशन शुड हैव इक्वल रूट्स. सो दैट मीन्स डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी 0. तो जब आप इसके डिस्क्रिमिनेंट 0 करोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन. देन टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1 z1 यू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर. सेम है नेक्स्ट भी. आर्टिकल 10 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ दिस कॉनिकॉइड whose generators are parallel to this line. So हमने ले लिया let P x1 y1 z1 be any point on the tangent parallel to the given line. Then equation of tangent line passing through x1 y1 z1 and parallel to the given line is of the type x minus x1 over L equal to y minus y1 by M is equal to z1 minus z minus z1 by N is equal to R say, so that you will get any point on this generator. In particular this point will lie on the sphere. तो sphere की इक्वेशन में पुट किया which is quadratic in R. Since the line is touching the sphere नहीं बोलना था, sorry, conicoid. Since this line is touching the conicoid, so the equation should have equal roots. Discriminant equal to 0. Taking locus of x1 y1 z1 you get the required equation of the enveloping cylinder. Article 11 is again same. Find the equation of cylinder whose generators touch the sphere and are parallel to the line. So generators touch the sphere का मतलब क्या हो गया कि जो सिलेंडर है वो एनवेलप कर रहा है स्फीयर को. तो सेम
equation of line through x1, y1, z1 and parallel to the given line, then you will get any point on this line, then this point will lie on the sphere, then putting discriminant equal to 0 you will get the equation of the enveloping cylinder. इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल 12. सो आर्टिकल 12 में दे आर सेइंग सिलेंडर आर द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ कोन. तो जब आप कोन बना रहे थे तो कोन की वर्टेक्स आपको पता थी क्या होती है? ये कोन की वर्टेक्स थी ना. अगर ये कोन था, एनवेलपिंग कोन था, तो अब नाउ इफ़ दिस वर्टेक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अगर ये वर्टेक्स इन्फिनिटी पे होती तो ये अपने आप ही जो कोन है वो सिलेंडर बन जाता. सो दैट इज़ वाई सिलेंडर इज़ नोन एज द लिमिटिंग फॉर्म ऑफ द कोन. सो डिड्यूस फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग कोन द इक्वेशन ऑफ एनवेलपिंग सिलेंडर. तो हम अब आपको वो बोल रहे हैं कि एनवेलपिंग कोन की हेल्प से आपने एनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन लानी है. whose generators are parallel to this line. तो since the generators of the cylinder are parallel to this line, इसका मतलब ये जो लाइन है इसकी डायरेक्शन रेशोज LMN हो जाएगी, बिकॉज दिस लाइन इज बिहेविंग एज एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड इट विल बी पैरेलल टू द जनरेटर्स एंड हैंस द गिवन लाइन. सो इसकी डायरेक्शन रेशोज हो गई LMN. सेकेंडली ये जो लाइन है ये सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास कर रही है, एक्सिस लिया ना हमने सिलेंडर का. सो इक्वेशन ऑफ दिस लाइन विल बिकम दिस ओनली, x माइनस 0 इज इक्वल टू y माइनस 0 ओवर m इज इक्वल टू z माइनस 0 बाई n. सो इसका मतलब एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन कैन बी टेकन एज LR, MR, NR. सो इफ दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द कोन, then equation of enveloping cone is given by t square is equal to s into s1. so ये इन्होंने किया, t square is equal to s into s1. अब इसको थ्रू आउट r square से डिवाइड कर दिया. now cone will become cylinder if r approaches to infinity. so taking limits as r approaches to infinity, 1 by r will approach to 0 and hence this is the equation of the enveloping cylinder. नेक्स्ट है आर्टिकल 14, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू अ सिलेंडर. सो आर्टिकल 14 आपने पढ़ना होगा, एक बार अपने लिए आप इसको रीडिंग दे देना. रिजल्ट बिल्कुल सेम है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0. सो जस्ट गिव दिस आर्टिकल अ रीडिंग एंड रिमेंबर दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 0. सो एक ही एग्जाम्पल है इसका. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर ऑफ दिस स्फीयर हैविंग इट्स जनरेटर्स पैरेलल टू द लाइन. तो आर्टिकल की तरह ही है, आप ले लोगे लेट p x1 y1 z1 be any point on the tangent line, so that equation of the tangent through x1 y1 z1 and parallel to the given line is given by x minus x1 by 1 is equal to y minus y1 by 1 is equal to z minus z1 by 1 is equal to r say, so that any point on this line is of the type x1 plus r, y1 plus r, z1 plus r. now this point will lie on the sphere. तो स्फीयर में लाई कराने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. नाउ दिस हैज़ इक्वल रूट, सो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 किया, b स्क्वायर माइनस 4ac. उसके बाद वो सॉल्व कर रहे हैं उसको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की होल स्क्वायर के लिए. इन्होंने क्या किया, x1 प्लस y1 प्लस z1 को एक टर्म ले लिया और 1 को दूसरी टर्म ले लिया. सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और ये वाली टर्म्स एज इट इज़. फिर इसमें a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो इसको पूरा सॉल्व करके ये आ गया आपका. देन टेकिंग लोकस ऑफ x1 y1 z1 यू गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द एनवेलपिंग सिलेंडर. नेक्स्ट इज आर्टिकल एक्सरसाइज 4b. सो एक्सरसाइज 4b में सब में चारों में एनवेलपिंग सिलेंडर की इक्वेशन ही निकालनी है आपने. तो अब आप कर लोगे ये एक्सरसाइज अपने आप. इसके बाद ये आंसर्स हैं एक्सरसाइज 4b के. दिस इज़ योर मिसलेनियस एक्सरसाइज. बुक्स आपके पास सबके पास हैं. सो नेक्स्ट दीज आर द आंसर्स ऑफ द मिसलेनियस एक्सरसाइज. सो इसके साथ हमारा सिलेंडर वाला चैप्टर ख़त्म हो गया. सो कंप्लीट योर एक्सरसाइज एंड आस्क मी एनी डाउट इन द क्लासरूम इफ़ यू हैव.